we had discussed about the 3 different systems to collect the land revenue in detail, and these systems were permanent settlement, Rayotwari system, Mahalwari systems. Yesterday we had discussed these in detail. Today we are going to continue this topic ahead. This time we are going to discuss the forced crop cultivation, forced cultivation of indigo. As we have discussed in the previous class about the restrictive policies made by the British government to produce only commercial crops. British government want to produce commercial crops because they want to earn profit more and more. Their main intention was to earn more and more finance, earn more and more money to meet their expenses. अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया में वो ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रेड को एक्सपेंड करे और इंडिया से ज्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ कर पाए. ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है इंडिया से मनी को एक्सट्रैक्ट करके कहाँ ले जाना, उसे ट्रांसफर करना टू द ब्रिटेन फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर फुलफिल ऑफ देयर नीड्स, for their self-interest, and due to which what they did, they forced the Indian farmers to commercial crops, to produce commercial crops. And at the same time, we know that during that time period, Indian farmers only were producing the subsistence crops, food grains, wheat, rice, different crops, but for their self consumptions only. तो अभी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप इम्प्लाई किया इंडिया के फार्मर्स को, उसका इम्पैक्ट क्या रहा और बेसिकली किन क्रॉप्स को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया. So I have given an idea to all that Britishers mainly forced the Indian farmer to produce indigo, but Indian farmers don't want to produce indigo. And why so? ये भी मैंने आपको बताया था कि इंडिगो जो है इस क्रॉप के कुछ फीचर्स होते हैं. क्या फीचर्स होते हैं? इंडिगो क्रॉप के फीचर्स ये है कि wherever indigo will be produced, the land after the production of crop or after crop cultivation will become barren or infertile, and after that it is not possible to produce any other subsistence crop on that same land, due to which farmers of India will not agree with commercialization of their crops. But the policies made by Britishers implied forcefully on Indian farmers. And we well on to that, the situation of Indian farmer was not so good during that time. They were not financially very strong. Some of them, we can say, were well versed, but a number of small farmers were greater in comparison of these. So number of these small farmers, marginal farmers, or the farmers who don't have sufficient money to produce, ऐसे farmers को Britishers की ये restrictive policy, ये forceful implementation को मानना ही पड़ा. इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज इंडिगो, व्हाई ब्रिटिशर्स फोर्स द इंडियन फार्मर, व्हाई दे वांट टू एक्सपैंड द इंडिगो प्रोडक्शन इन इंडिया ओनली. ऐसा क्यों था?
बाकी कहीं भी तो वो प्रोड्यूस कर सकते थे, ब्रिटेन में भी प्रोड्यूस कर सकते थे, यूरोप में भी वो प्रोड्यूस कर सकते थे, बट व्हाई दे चूज इंडिया? इवन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज नॉट सो गुड फॉर इंडिगो प्रोडक्शन. इंडिया का जो एनवायरमेंट है, जो बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो हम परफेक्टली सूटेबल नहीं कह सकते इंडिगो के लिए. बट आफ्टर दैट Britishers, why they want to produce indigo in India? क्या reason रहे? So that's what we are going to discuss. And for what I'm going to share a page on screen having notes of these. One by one हम उन points को discuss करेंगे. You focus. Indigo cultivation. First question arises when we heard about indigo cultivation. What is indigo? आखिर indigo है क्या? तो indigo, it's a fine royal blue color, or I should say dye, generally which is used to color the textile, the fabric in the textile industries. तो ये जो indigo एक fine royal blue color which grows in form of a tropical plant. ठीक है, किस फॉर्म में मिलता है, किस फॉर्म में इसको जाता है, प्लांट किया जाता है, प्लांटेशन होता है इंडिगो का. ठीक है, और ट्रॉपिकल एरियाज में इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है. सो वी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल रीजन. तो हमारे एरिया में स्टेट्स पार्ट्स ऑफ इंडिया वो है जहां पर इंडिगो का प्रोडक्शन होता है. स्पेसिफिकली इन बंगाल. बंगाल वाज वेरी फेमस. तो इंडिगो क्या है? अ फाइन क्वालिटी ऑफ रॉयल ब्लू कलर विच इज जनरली यूज्ड टू color the textile or the fabric that found in form of tropical plant. Okay. This question arises: why the Britishers choose India a perfectly suitable location for expansion of area under cultivation for indigo? क्यों ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें इंडिगो कल्टीवेशन के लिए या इंडिगो कल्टीवेशन को अगर एक्सपैंड करना है तो वी शुड चूज इंडिया ओनली? Why? So the first reason behind it is during the 1780s, indigo's demand was rapidly increasing in the Europe. As we well know, during that time period, industrialization came into existence in the European countries, and textile started to establish there. And for the expansion of their trade of fabric, clothes, what they want good quality of colors. And what they found? In between, they found that they are also producing royal blue color. ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में या यूरोप की अदर कंट्रीज में रॉयल ब्लू कलर या इंडिगो का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था. इंडिगो के लिए उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए इंडिगो की जगह वो लोग उसका एक सब्स्टिट्यूट जो कि वुड्स कहलाता है. ठीक है, क्या कहलाता है? वुड कहलाता है. WOODZ, वुड्स. जैसे इंडिगो का यूज कलर को क्लोथ को डाई करने के लिए इन फॉर्म ऑफ कलर किया जाता है, उसी तरीके से वुड्स का यूज भी यूरोपियन कंट्री में ब्लू कलर डाई के तौर पर किया जाता था. बट द डिफरेंस बिटवीन इंडिगो एंड वुड्स वाज इंडिगो गिव्स अ फाइन रॉयल ब्लू कलर व्हिच वाज वेरी अट्रैक्टिव टू सी. जैसा आपने देखा होगा ना, पिकॉक के नेक पे होता है रॉयल ब्लू कलर, वैसा ब्लू कलर इंडिगो से फैब्रिक पे किया जाता.
एंड ब्रिटेन में या अदर यूरोपियन कंट्रीज में जो वुड्स यूज किया जाता था वो इतना अच्छा शाइनिंग और अट्रैक्टिव कलर नहीं देता था. दिस वाज द डिसीजन. इसीलिए इंडिगो जो कि बंगाल में इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा था, that was in huge amount worldwide across the globe. That was the main reason. तो एक तरीके से कंपटीशन क्रिएट हो गया फॉरेन मार्केट. यूरोपियन कंट्री में प्रोड्यूस ब्लू कलर को उतना ज्यादा डिमांड नहीं किया जाता था जितना इंडिया में कलर्ड हुए ब्लू फैब्रिक का होता था या उसमें यूज किए गए ब्लू कलर का होता था. तो क्वालिटेटिवली अपने प्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए व्हाट ब्रिटिशर्स वांट, they want to expand the area under cultivation of what? Indigo. वो चाहते थे कि हमें ये इंडिगो मिल जाए जो कि बंगाल में प्रोड्यूस हो रहा है या ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, हम ज्यादा से ज्यादा इंडिगो का प्रोडक्शन करें, तभी हम क्या कर पाएंगे, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. एंड ड्यू टू विच ब्रिटिशर्स forced Indian farm to produce indigo on their fertile land. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अगर फर्टाइल लैंड पर प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो हुआ, it will turn into a barren or infertile land, जिसके लिए Indian farmers were not ready. So some points are here. The third point is Britishers want to fulfill their needs with expansion of area under indigo cultivation. And the fourth one, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया के जो भी प्रोड्यूसर्स जो फार्मर्स थे उन्हें फोर्स किया कि आटा प्रोड्यूस करिए, इंडिगो प्रोड्यूस करिए. फाइन. सो दिस वाज द मेन रीजन why Britishers want to produce indigo or to expand their area for production of indigo by Indian farmers. Is it clear to all? Yes, ma'am. मैम आपकी वॉइस नहीं आ Is रही. it clear to all? To whom? आ रही है मैम वॉइस तो मैम तगड़ी. It may be a network issue. You should check your network first. नो मैम सही आ रही है मैम वॉइस तो. Rejoin if you are not able to listen my voice. So yes, we are going to continue here. So this was how the Britishers forced Indian farmers. क्यों वो चाहते थे कि इंडिया में इंडिगो का कल्टीवेशन बढ़े? हमें क्यों चाहिए था? क्योंकि इंडिया का जो इंडिगो था, द रॉयल ब्लू कलर, दैट वाज वेरी फाइन इन क्वालिटी, जैसा बाकी कहीं नहीं होता था. अब हम देखते हैं व्हाट पैटर्न दे ड्रॉ. ऐसा कौन सा सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया जिससे इंडिया में इंडिगो प्रोडक्शन को पॉसिबल किया जा सके. So basically there were two main systems, the niche system and the Ryoti system. You can see it on page number 27 in your books. You can find it over there. Page number 27 पे जाइए. You will find it in the paragraph 3rd. There were two main systems of indigo production. या इंडिगो प्रोडक्शन के लिए जो सिस्टम ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया, दैट वाज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन. ठीक है, तो indigo production, two different systems were made there to produce indigo or to expand the area under indigo cultivation by Britishers. First one was niche system. And the second one was Ryoti.
ठीक है, निज सिस्टम एंड रायोटी सिस्टम. निज हिंदी में आप पढ़ते हैं निज वर्ड. निज का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है निज का? अपना, प्राइवेट, सेल्फ ओन, अंडर योर कंट्रोल. दैट इज कॉल्ड निज. एंड व्हाट इज रायोटी? समथिंग विच इज अप्लाइड फोर्सफुली. ठीक है, तो एक तरीके से बॉन्डेड फॉर्म में काम जो हो रहा था वो रायोटी में था, और दिस वाज निज, दैट मींस सेल्फ. लेकिन ये बात किसकी हो रही है? सेल्फ का मतलब क्या फार्मर्स के लिए यूज हुआ है, रायोटी के लिए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है? देखो, अंडर दिस सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन या इंडिगो प्रोडक्शन, what Britishers started, when the Britishers got to know that India's indigo in a huge demand worldwide, so what we should do, उन्हें क्या लगा कि हमें इंडिया में एक्सपेंशन कर लेना चाहिए. And for that purpose, British government sent some British officers as planters. ब्रिटेन से कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स को इंडिया में भेजा गया. क्या करने के लिए? कि आप वहां जाइए. बीइंग अ प्लांटर, प्लांटर कौन होता है? अ पर्सन हु ओन अ बिग फार्म लैंड टू डू प्लांटेशन. जैसा कि कल हम डिस्कस कर रहे थे, आसाम, दार्जिलिंग, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स, और ये टी गार्डन्स बहुत बड़ा एरिया होता है. तो जो पर्सन इनका ओनर होता है, किसी भी टी गार्डन का अगर कोई पर्सन ओनर है, वो पर्सन क्या कहलाएगा? प्लांटर कहलाएगा, कि उसकी ओनरशिप में वो पर्टिकुलर लैंड है. ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट इट्स सम ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, टू ऑब्जर्व the work of plantation in India or to do expansion of that work. कुछ ऑफिसर्स को भेजा गया कि इंडिया में जाइए, प्लांटेशन कीजिए और प्लांटेशन को एक्सपैंड कीजिए, बढ़ाइए. किसके प्लांटेशन को? इंडिगो प्लांटेशन को. तो some people, some officers, some name are given here, which are numerous Scotsmen and English headmen. ये दो लोगों को वहां से प्लांटर बना करके भेजा गया. ठीक है, तो जो हम बात करते हैं निज सिस्टम की, निज मतलब एरिया दैट वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्लांटर्स. जो प्लांटर्स थे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम स्कॉट्समैन या इफ आई एम इंग्लिश हेडमैन, मेरे पास में एक बहुत बड़ा फार्म लैंड मैंने इंडिया में आकर के उस पर अपना क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया. बिकॉज वी नो दैट देयर वर सेवरल टेरिटरीज ऑन विच ब्रिटिशर्स टुक कंट्रोल बाय रिमूविंग द डोमेस्टिक रूलर्स और नवाब्स. इंडिया के बहुत सारे ऐसे किंग्स जो थे, नवाब जो थे, उन्हें हटा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल किया. तो ऐसे लैंड को जब ब्रिटिश ऑफिसर प्लांटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, वो इस सिस्टम के अंडर आती है, निज सिस्टम के अंदर. समटाइम it done by the planters. They purchase from zamindars and appoint hired labor. कभी कभी जो कल्टीवेशन का काम है वो किस तरीके से किया जाता था? अगर ठीक है डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है लैंड, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स asked to zamindar to sell their property to them or to give them on rent. उसके बाद में they hired the labor force to work on these farmland. There was a huge need. Tarun, I written on the board system of indigo cultivation, which was broadly classified in niche system and Rayoti system. Let me tell you, it is on page number 27, paragraph 3rd. आप वहां भी देख सकते हैं, दो ब्रॉड पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है इंडिगो कल्टीवेशन के सिस्टम को, निज और रायोटी. तो अंडर द निज सिस्टम, आई एम गोइंग टू रीड इट. एवरीवन just in your books, be focused in your books.
फर्स्ट सिस्टम वो था निच सिस्टम, जो मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान देंगे अपनी बुक्स में एक बार सब. अंडर द निच सिस्टम द प्लांटर्स कल्टिवेटेड इंडिगो ऑन लैंड विच वाज डायरेक्टली अंडर देयर कंट्रोल. जो लैंड ब्रिटिश ऑफिसर्स या प्लांटर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी, उस लैंड पे क्या किया जाता था, प्रोडक्शन किया जाता था अंडर निच सिस्टम. ठीक है. समटाइम दे आस्क्ड टू जमींदार टू गिव देयर लैंड टू देम. कभी कभी जमींदार को कहा जाता था कि अपनी जमीनें हमें दे दीजिए प्लांटेशन के लिए, हम इन पर लेबर हायर करेंगे और उनसे काम करवाएंगे. तो ये भी एक तरीका था निच सिस्टम में इंडिगो कल्टीवेशन का. However, there were certain limitation of the niche system. लेकिन niche system की कुछ drawbacks थे, कुछ कमियां थी. As the area producing indigo could not be expanded. इंडिगो प्रोडक्शन के लिए एरिया एक्सपेंशन बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, प्लस उसके लिए बहुत सारे लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. आपने देखा होगा प्लांटेशन जब भी होता है, जैसा कि टी प्लांटेशन की अगर हम बात करें, it required lots of human work, lots of care. जब भी आप कभी किसी टी गार्डन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर काम करने वाले बहुत सारे लेबर फोर्स होता है. क्या काम होता है उनका? ड्राई लीव्स को चुन करके अपने बैग में डालना, बास्केट में डालना. अगर कहीं पर प्लांट्स खराब हो रहे हैं उनकी केयर करना. तो बेसिकली इट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ लेबर फोर्स और ह्यूमन वर्क. But Britishers was not successful to get all these things together. Successfully उन्हें ये सारी चीजें कर पाने में सक्सेस नहीं, ये सारी चीजें कर पाने में उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई. ठीक है. और these things were not readily available to them. The niche system not so much successful. Second system was the Rioti system. Under the Rioti system, Britishers made some laws which was forcefully implemented on the Indian farmers. Rioti system में क्या था? Rioties कौन होते हैं? Farmers को ही क्या कहा गया है यहाँ पर? Rioties. ठीक है. तो राइट्स और फार्मर्स, अगर मैं राइट्स बोल रही हूँ उसका मतलब क्या है? फार्मर्स ही है. तो अंडर दिस सिस्टम राइट्स और फार्मर्स उनको फोर्सफुली कहा जाता था कि डू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरदस्ती उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन देयर फर्टाइल लैंड. तो ये जो एक्ट था दैट वाज फोर्सफुल, अपनी मर्जी से नहीं करते थे फार्मर्स. Sometime on behalf of farmers, a village headman or zamindar asked to sign on the contract. अगर फार्मर्स नहीं कर रहे हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किससे करवा लेती थी? जमींदार, जिसके कंट्रोल में बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स हैं, या विलेज हेडमैन जिसके अंडर में बहुत सारे छोटे फार्मर्स आते हैं. तो वो फोर्सफुली उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी कि आपकी जो भी फर्टाइल लैंड है, डू इंडिगो कल्टीवेशन ऑन दैट फर्टाइल लैंड. एंड as a result of that, as a consequence of that, their fertile land soon turned into the barren or infertile land. And because of that, farmers got exploited and they started to get frustrated with this, and soon they took a decision to do a revolution, जिसको कि हम ब्लू रेबेलियन के तौर पे देखते हैं. The farmers, the riots of the Bengal became rebels. अब उन्हें लगा कि बहुत ज्यादा हो गया, we are not able to produce subsistence crops. हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी जब प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, लैंड इज आर producing the whole work we are doing, then the output, why the British taking the output? एक बार इंडिगो प्रोडक्शन के बाद अब हम अपने लिए कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फूड ग्रेन, फूड क्रॉप्स. So that's why they took a step in form of revolution, which is called Blue Rebellion. Blue Rebellion के बारे में आगे पढ़ेंगे, but the fact is here, ये जितना भी इंडिगो
कल्टीवेशन से लेकर ब्लू रेवेलियन या जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रायोट्स और द फार्मर्स है उसको लेकर के एक बुक भी लिखी गई है नेम्ड विद नील दर्पण. ठीक है, बुक का नाम क्या है? 1860 में एक बुक इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर के लिखी गई है एंड द बुक नेम इज नील दर्पण. तो एक स्मॉल क्वेश्चन इससे बनता है, नेम अ बुक विच रिफ्लेक्ट्स द indigo cultivation in India. Which book is there which reflects the exploitation faced by indigo cultivators in India? तो बुक का नाम क्या है? नील दर्पण. And when it was written? In 1860. Who was the writer? दीन बंधु मित्रा. Who was the writer of this book? अगर हम बुक के राइटर की बात करें तो बुक राइटर वाज दीन बंधु. ठीक है, दीन बंधु मित्रा. यू विल फाइंड इट इन एवर वंडर ऑल्सो इन योर बुक. ठीक है, yes beta, is everything clear up to here? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, मैम ma'am. इन्हें कॉपी में नोट डाउन करना है क्या? कॉपी में नोट डाउन नहीं करना तो कॉपी में नोट डाउन. हमारे साथ में कॉपीज लेकर के बैठे हैं. इट विल Yes, ma'am. मैं तो नहीं करूंगा नोट डाउन. मैम समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हो आप? समझ में नहीं आ रहा मैम एक बार सबको ना म्यूट कर दो आप. तो कर दे. यस अभिषेक शर्मा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम बेटा? अभिषेक शर्मा, डू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ. अभी आप बहुत बोल रहे थे आई विल नॉट डू इन माय कॉपी. इज देयर एनी प्रॉब्लम? मत कीजिएगा बेटा, मत कीजिएगा सबमिट. डेफिनेटली आई विल कट योर मार्क्स सो दैट. Be in limit. You are in the class. You are not teacher here. Fine. If I observe all these things next time, definitely will remove you from my class. No need to be stay here. Yes, Kati, you do you want to ask something? ख्याति मेहरा, कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? I did unmute you. You can speak up. Okay, fine, fine. I got you. Let me tell you one thing. Notes you have to do in your copy, but all these things which I am writing here, all the things which I am sharing on the screen, I will share all these things in. So don't worry. You can go on to the MCS website. You can check over there. You will find all the stuff, all the notes that we had covered till now from there. आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं. अब तक के जो भी नोट्स हैं, अब तक के जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, I already uploaded on that. You can check over there. तो जो भी आपका पेंडिंग रह रहा है वर्क, आप वो भी वहां से कर सकते हैं. And new chapters, the flow charts or the current chapter which we are doing, I am going to share it on the website also. तो आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं. तो अभी ऐसा फंबल होने की जरूरत नहीं है कि ड्यूरिंग द क्लास हमें बोर्ड पर अगर ब्लर दिख रहा है, some network problem is there, your voice is not coming. We should be familiar now.
with all these things, because we know that this is not a very good medium through which we are going, but in the situation of pandemic, something is better than nothing. We are going continue with the classes, beta. Do understand. अपनी अपनी कॉपीज में कर लीजिएगा नोट, लेकिन आई विल शेयर पीडीएफ ऑल्सो, और अगर आपको यहाँ से भी करना है तो भी आप कर सकते हैं. यू कैन मेक योर सेल्फ नोट्स. चलिए आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर व्हेन द फार्मर बिकेम रीबेल. कब उन्हें ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया, नाउ वी डोंट वांट टू डू इंडिगो कल्टीवेशन, हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं, या नाउ आवर फैमिली आल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम्स, वी आर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट फूड टू फीड आवर फैमिली नीड्स. कहीं भी कुछ भी अगर फार्मर्स जो थे वो मजबूरी में ऐसा कर रहे थे. एंड British government were providing loan facilities to the farmers to produce indigo. The farmers initially who was denying to produce indigo on their farmland, British government ने उन्हें attract करने के लिए loan policies start की. They started to provide loan to produce indigo. They started to provide finance to the farmers. कि अगर आपके पास में पैसे नहीं है, वी आर गिविंग यू लोन, आप लोन लीजिए और इंडिगो प्रोड्यूस कीजिए अपने फार्मलैंड पर. सो व्हेन द सिचुएशन बिकम वर्स्ट, द फार्मर took a decision of revolution. They become rebel, and that's why it's called Blue Rebellion. Who was the Blue Rebellion? The farmers who was doing indigo cultivation under the pressure of Britishers, they turned into rebel. Why it's called Blue Rebellion? Because they were involved in the indigo cultivation. और इंडिगो क्या देता है? एक फाइन रॉयल ब्लू कलर, इसीलिए इसको क्या कहा गया? ब्लू रेबेलियन कहा गया. So in March 1859, when it was started, in March 1859, the riots of Bengal, the farmers of Bengal who were involved in the indigo cultivation, started to deny for indigo production. Yes, Priyanshi, what do you want to ask, Pita? Priyanshi, you can speak up. Yes, ma'am. Can you please repeat the Rioti system? Rioti system. Okay, beta, no problem. देखो, under the Rioti system, as I told you, niche system में the land was under direct control of British government. But under Rioti system, अपनी लैंड पर तो वो प्लांटेशन कर ही रहे थे ब्रिटिशर्स, जमींदार से लैंड रेंट पे लेकर उस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं. पर अभी वो क्या चाहते थे? और ज्यादा प्रोड्यूस करना. तो जो स्मॉल फार्मर्स थे उन्हें भी फोर्स किया गया कि अपनी लैंड पे आप क्या प्रोड्यूस करिए, सिर्फ इंडिगो प्रोड्यूस करिए. एंड फॉर दैट पर्पस दे फोर्स द रायोट्स, दे फोर्स द फार्मर्स, साइन करिए कॉन्ट्रैक्ट. फार्मर्स से जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था कि दैट दे आर प्रोड्यूसिंग इंडिगो ऑन देयर फ्री विल. किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया है. ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो खुद क्या कर रहे हैं? अपनी लैंड पर इंडिगो प्रोड्यूस कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था कि नेक्स्ट 1 to 5 ईयर ये इस लैंड पर इंडिगो ही प्रोड्यूस करेंगे फोर्सफुली. अगर फार्मर्स डिनाई करते थे तो विलेज हेडमैन, कल हमने डिस्कस किया था, हु वाज विलेज हेडमैन? अ पर्सन हु हैड कंट्रोल ऑफ महल या नंबर ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस का कंट्रोल जिसके हाथ में होता था. तो उस पर्सन से साइन करवा लिया जाता था ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स, अगर फार्मर्स मना करते थे. ठीक है. सो ये जो एग्रीमेंट था इसको क्या कहा जाता था? सट्टा. ठीक है.
अभी वो बैट वाला सट्टा मत सोच लेना, मैच फिक्सिंग और ये सब नहीं. इट वॉज कॉल्ड सट्टा. एग्रीमेंट होता था, फोर्स एग्रीमेंट था, विच वॉज साइंड बाय द फार्मर्स. ठीक है. सो मेनी टाइम विलेज हेडमैन्स ये साइन करते थे, मेनी टाइम फार्मर ये साइन करते थे, और मजबूरी में उन्हें अपने फार्म लैंड्स पर क्या प्रोड्यूस करना पड़ता था, इंडिगो प्रोड्यूस करना पड़ता. ठीक है. इज इट क्लियर नाउ? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. द ब्लू रेबेलियन. So what was blue rebellion? जैसे कि हमने डिस्कस किया, the people who started to become rebel, they started to deny for the indigo cultivation on their farmland. कहाँ से स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है 1859 में in Bengal. Why in Bengal? Because the process of indigo cultivation started also from Bengal, which became presidency. ब्रिटिशर्स का प्रेसिडेंसी था बंगाल रीजन, और बंगाल में ही इंडिगो कल्टीवेशन लिमिटेड एरियाज में हुआ करता था, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एरिया अंडर कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन एक्सपैंड हुआ, ज्यादातर फर्टाइल लैंड इनफर्टाइल में कन्वर्ट हुई. नाउ देयर वाज अ चैलेंज फॉर फार्मर हाउ दे विल मेक देमसेल्फ एबल टू फुलफिल देयर फूड नीड्स. अब लैंड तो इनफर्टाइल हो गई, तो सब्सिस्टेंस क्रॉप, राइस, वीट, ये सब कहाँ प्रोड्यूस करेंगे और कैसे अपने नीड्स को फुलफिल करेंगे. सो दिस ऑल फोर्स द इंडियन फार्मर टू लेफ्ट द इंडिगो कल्टीवेशन. सो नाउ riots refused to pay rent to the planters. ठीक है. What they made them? They refused to pay rent to the planters. Planters कौन? जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, such as Scotsman, English headman. What you are doing, Arpit? Can't you sit properly? At least in front of camera. Stop all this nonsense. Fine. So and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? रिबेल कौन होते हैं? The rebel, the persons who wants to take revenge at any cost. किस चीज का रिवेंज लेना चाहते थे? जिसके लिए उन्हें फोर्स किया गया था, जबरदस्ती उनसे कल्टीवेशन करवाया जा रहा था. तो वो हाँ बिल्कुल विरोधी, अगर हम हिंदी में बात करें तो विरोधी. यस ईशान. तो व्हाट दे स्टार्टेड टू डू, अब उनके पास में जैसे भी वेपन्स होते थे, वेदर द स्वॉर्ड्स, वेदर द bows, arrows, even with the sharp utensils, they started to attack on the sepoys. ब्रिटिश आर्मी के जो सिपाही होते थे, सिपॉइज होते थे, उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. इन्होंने रायोट्स ने, फार्मर्स ने. फाइन. द गोमस्त, अ वर्ड इज गिवन हियर. पेज नंबर 27 पे आइए इन योर बुक्स एवरीवन. सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखिए. द गोमस्त. हु वाज द गोमस्त? कौन थे ये गोमस्त? गोमस्थास were the agents. कौन से agents? These agents was appointed by the British government to collect rent from the farmers who were producing indigo on their land. ठीक है, देखो बेटा, गोमस्थास या गोमस्त, you can say गोमस्थास also. Who were these? Agents to collect rent. रेंट कलेक्ट करने के लिए जो एजेंट्स अपॉइंट करे गए थे, किसने अपॉइंट किए? ब्रिटिशर्स ने. और किनसे कलेक्ट करना होता था रेंट?
from farmers. अब जब ये farmers they turn rebel, जैसे ही ये रिबेल बने, इन्होंने इन गोमस्त को क्या करना शुरू कर दिया, बीटन अप, पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, एंड व्हाटएवर दे हैव विद देमसेल्फ, स्वॉर्ड्स है, यूटेंसिल्स, शार्प यूटेंसिल्स है, एरोज, बोज वर देयर, उनकी जैसे ही वो रेंट लेने के लिए आते उनको मारना पीटना शुरू कर देते. इवन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटिशर्स विच वाज सेट अप नियर, उन फैक्ट्रीज पर जाकर के अटैक करना स्टार्ट कर दिया फार्मर्स ने. विलेज हेडमैन, उन्हें मारा पीटा गया, उनके लैंड्स को ऑक्यूपाइड कर लिया गया बाय दीज रेबल्स. जमींदार्स के घरों में जाकर के द हाउसेस वर लूटेड बाय दीज फार्मर्स. उनके घर जाते, फाइनेंस, क्रॉप्स, व्हाटएवर दे फाउंड देयर, वो सब चीजों को वहां से क्या करके आ जाते, लूट कर आ जाते, रॉबरी करते. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स दे डू टू गेट अ रेवेंज, बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया. और दिस इज कॉल्ड द ब्लू रेवोल्यूशन मेड बाय द ब्लू रेबेलियंस. ठीक है. In other places, even the zamindar went around villages using the riots to resist the planters. These zamindars were unhappy with the increasing power of planters and angry at being forced. At some villages, at some places, zamindars were also there who don't want to give rent to the Britishers. कुछ ऐसी जगह भी थी जहां पर जमींदार भी फोर्सफुली ये काम कर रहे थे. तो उन जमींदार ने भी किनका साथ दिया, फार्मर्स का. They came together against the British army, against the British government. So this indigo peasants were sure that the British government would support them in their struggle. But somewhere the British government, who was making policy, who were making who were providing loan facilities to these farmers, तो कहीं ना कहीं इन इंडिगो पीजेंट्स को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके साथ में जस्टिस करेगी. आफ्टर द रिवोल्ट के बाद क्या डिसीजन लिया गया, बिल्कुल तरुण, this was a correct decision taken by the farmers, but it should be taken on a strong basis. They were not united. आपका जो क्वेश्चन है क्या ये डिसीजन सही था ब्लू रेबेलियन का, बिल्कुल सही डिसीजन था, but it should be, the step should be taken on the basis of a strong base. यूनिटी के बेसिस पर सबको एक साथ आकर के ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फार्मर्स वर डिवाइडेड और स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. तो अलग अलग जगह पर स्मॉल स्केल पर ही रेवोल्यूशन हुआ, एक साथ नहीं हुआ. अब वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट इन द बंगाल द फार्मर्स स्टार्टेड दिस, लेकिन वो पूरी कंट्री में हर जगह पर एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. डिसीजन वाज राइट बट इट शुड बी स्ट्रॉन्ग. So the indigo peasants for sure, उनको लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ में क्या करेगी, जस्टिस करेगी आफ्टर रेवोल्यूशन. But what happened then? After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये डर जरूर था कि ये हमारे साथ 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद ब्लू रेबेलियन किसी एक बड़े रेवॉल्ट का रूप ना ले ले. 1857 का रेवोल्यूशन हमें पता है, 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था टू गेट इंडिपेंडेंस एट डिफरेंट प्लेसेस, मेरठ, झांसी, एट इन महाराष्ट्र, मराठा रीजन, डिफरेंट बेसिस पर रेवोल्यूशन हुआ था. और वो रेवोल्यूशन बहुत बड़ा है, हम जाकर के इसको 10th क्लास में डिटेल में पढ़ते हैं आगे. तो ये जो रेवोल्यूशन है 1857 का,
अब ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्राइटेंड विद दैट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या हुआ, डर लग गया कि कहीं ये रेवोल्यूशन उतना बड़ा ना हो जाए, अगर ये इतना बड़े स्केल पर हुआ रेवोल्यूशन तो it definitely be a challenging situation for British government to control. So Ashley Eden, a British officer, or I should say the Lieutenant Governor of Bengal during that time period. Ashley Eden, the Lieutenant Governor of Bengal, tried to appease the riots by issuing an order stating that riots would not be forced to accept indigo contracts. अब जैसा कि लगता था वैसा ही ब्रिटिशर्स ने किया. एशली एडन ने क्या रूल सेट किया आफ्टर रेवोल्यूशन कि यस, नाउ द रायट्स शुड नॉट बी फोर्स्ड टू साइन द एग्रीमेंट. इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा. If they want to produce indigo on their farmland, or if they don't want, this totally will be an individual decision of farmer. ठीक है, क्या कहा गया, पूरी तरीके से ये फार्मर्स का इंडिविजुअल डिसीजन होगा. अगर उन्हें अपने फार्मलैंड पर प्रोडक्शन करना है इंडिगो का, they should give liberty. If they don't want, they should not be forced. ठीक है. After the indigo revolt, the plantations were shifted from Bengal to Bihar. लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि रेवोल्यूशन कहाँ हुआ, बंगाल में, तो डिसीजन भी कहाँ लिया गया, बंगाल में. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन एक्सपैंड किया और अब बिहार, बंगाल में ना करके वो कहाँ पर किया, बिहार में. So the now indigo cultivation shifted from Bengal to Bihar. There also several revolts took place, or as what should be the effect of that? That should be same, that should remain same. बिहार में भी रायट्स ने, फार्मर्स ने रिबेल करना स्टार्ट किया या रेवोल्यूशन करना स्टार्ट किया. When Mahatma Gandhi returned, and in 1951, I should say, 1951 में Mahatma Gandhi, when he came back to India, he observed that the situation, the condition of the Indian farmers is not good in Bihar, Champaran basically. In which district? Champaran district of Bihar. He observed that the farmers are facing difficulties. They are not happy with the crop cultivation because they forced by the British officers to produce indigo. So Mahatma Gandhi also took initiative to stop this forced work through the सत्याग्रह मूवमेंट. और इसी दौरान महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट भी अपना स्टार्ट किया. He was in search of truth. और इस सत्य की खोज में ही क्या किया गया, सत्याग्रह किया गया. So solve their problems. तो जहां जहां उन्होंने ट्रैवल किया वहां के फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को उन्होंने सुना और उन्हें सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए. ठीक है, जिनमें बिहार का इंडिगो कल्टीवेशन भी एक प्रॉब्लम था जिसको महात्मा गांधी ने काफी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की. सो दिस वाज ऑल अबाउट रूलिंग द कंट्री साइड आफ्टर took control over the Indian domestic territories. कैसे ब्रिटिशर्स ने throughout the nation agriculture, industrialization, trade, everything they took under their control. किस तरीके से उन्होंने expansion किया. So in this chapter we go through with the economic system, how they control the economic system of the country. उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए डिफरेंट सिस्टम फॉर्म किए, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया. इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया. एंड रिजल्ट ऑफ दैट धीरे धीरे डोमेस्टिकली रेवोल्यूशंस होने लगे, पीपल बिकम रीबेल.
तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है. आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रेड के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में in the next chapter. So it is all about, and I will share the notes of this chapter, and you all have to do in your homework copies. Along with this, the homework for today is you have to find out all the MCQs, the true false, the fill-ups, and the one-line questions or one-word question. This is your homework for today. आप सर्च करके रखेंगे, आप अपनी बुक्स में मार्क करेंगे. In the next class, I will check your answers, and if you don't get any answer, I will tell you. एक बार cross check हम करेंगे, ठीक है? You can rectify wherever the error you found. So that's enough for today. Going to end the class. Any student is there who had joined late after attendance? तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं. Priyanshi, do you want to ask something? Yes, ma'am. Ma'am, what is the meaning of arils? Sorry, beta. Could you please repeat? What arils? Let me check your chat box. Actually, I'm not getting. Evils का मतलब होता है बुराइयां, घोस्ट, ठीक है? Beta, Ashley Aden was the Governor General, Lieutenant Governor General of Bengal. Any other question? So you can put your message in chat box. Okay, thank you, class. I'm going to end the meeting for today. I'm going to end the meeting for. I'm going to end the class for today. We'll continue in the next class. Okay, with another chapter. It may be from civics. It may be from history. It may be from geography. And what about your oral test? Although मैंने एक बार oral ले चुकी हूँ, लेकिन some students were not present there. So I want to take an oral test also. So in the next class, listen it very carefully. In the next class, that means on Tuesday, I will take oral of first chapter geography, first chapter civics, first chapter of history. वही जो आपका यूटीज का सिलेबस था, उसी पर बेस्ड एक oral test I will take. ठीक है? So if some students who are not here and you are able to convey this message to them, you can. जो भी आपके friends हैं, please do convey. I will take an oral test on Tuesday. So it's an opportunity for those who were not there in the previous oral test. Thank you, class.